last topic which we have learned, that was the differential equation first order. It was of the first order, first degree. So in that we have learned the linear differential equation, the reducible to the linear, that is called Bernoulli equation, and after that we have learned the exact differential equation, and after exact there is a reducible to exact form. In reducible to the exact form, I have explained many methods, as 5 or 6 methods I have explained you, and among the 5 or 6 method, 2 or 3 methods I have solved that problem. Now 2 3 problems are also I am taking here. We have to see whether this equation will be solved by linear or exact, and if it is not solved by the exact, and by which method we can solve it. So we have to examine it. So you have to concentrate it, and if you have written all the 5 methods or 4 methods, whatever it was, so just go through that all the 4 methods and use your mind. Don't copy from anywhere, don't search from anywhere, just use your mind, such that in the examination you can use own mind, such that the problem can be solved. So here I have taken the equation 2y plus 6xy square into dx plus 3x plus 8x square y into dy is equal to 0. In the examination, the question will never ask that this problem will be solved by the linear or exact. It will never be given. By the problem, if we have done a practice in the chapter, then we can say that this is the method of this topic, this is a method of from this topic. So we can see that 2y plus 6xy square dx plus 3x plus 8x square y into dy. So this is the m dx and this is the n dy. Here it is a m and here it is a n. So this is the problem of the exact differential equation. It is the problem of exact differential equation. So what is exact differential equation? That is m dx plus n dy is equal to 0. In that we have to use the m part, then we have to differentiate it, and again we have to use the n part and differentiate with n with the x. You will get, if they are equal. If they are equal, that means exact, and if they are not, that means they are not exact. So here I will use the m part. What is the m part? It is a 2y plus 6xy square. Differentiate m with respect to the y. This is equal to, it is 2 plus 12xy. It is 2 plus 12xy. Similarly, take the n part. N is equal to 3x plus 8x square y. Differentiate n with respect to the x. This is 3 plus 16xy. Now we can see that here del n upon del y is not equal to del n upon del x. So it is reducible to exact form. To exact form. So which method I have to adopt for to change the reducible into the exact form? Which method I have to use? तो हमारे पास कई सारी चीज थी. First method. What was the first method? First method, I told you that if the function is homogeneous, if you remember, the first method was that m dx plus n dy is equal to 0, and that function should be in homogeneous. So we see here 2y. 2y means y has a power of 1, and here it is a 6xy square. It has x has the power of 1 and y has the power of 2. So the total power will be 3. So we can't say that it is a homogeneous. So पहला method तो आपके पास में drop हो गया. Now the second method, use del upon del y and del upon del x. If I am subtracting, अगर इन दोनों को आप subtract कर लो, आप इसमें से अगर आपने subtract कर लिया आपने इसमें से, तो क्या होगा? 12x, ये हम एक ट्राई करके देख सकते हैं. वी कैन ट्राई इट. अब मैं सिर्फ यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, वो देखिए. मैंने यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x लिया. ये क्या बन गया आपके पास में? 2 प्लस का
उल्टा ले लेता हूँ मैं। ये आपके पास आ गया आपकी एन, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है? अब तो आ आ रही है। रही आ रही है सर, आ रही है। डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन का डेल वाई, ये मैंने इसको माइनस करने की कोशिश की है। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, ये आ गया 3 प्लस का 16xy माइनस 2 माइनस का 12xy। इसको मैंने माइनस किया, क्या मिल गया मुझे, 1 माइनस का 4xy। इफ आई एम यूजिंग डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इसका मतलब ये हो गया 1 बाई एम से डिवाइड। इफ आई एम टेकिंग द 1 बाई एम, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दो एम से, व्हाट इज द एम पार्ट, ये आ जाएगा आपके पास में 2y माइन प्लस द 6xy स्क्वायर। ये कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है और ऊपर आपके पास वाई, तो वाई कैंसिल होगा नहीं। इसका मतलब ना तो आप इससे माइनस कर सकते हो और ना ही आपका इसका रिवर्स माइनस कर सकते हो। तो ये डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, ये दोनों मेथड ही आपका काम का नहीं आएगा। सो इसको फिर हम इसको रब कर देते हैं। इसका मतलब 3 मेथड तो यहाँ से रवाना हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, if I'm using the, what was the next method? Next method was that fxy y dx plus fxy x dy. See that here if you take the y, तो y dx तो आपके पास बन गया और यहाँ से x dy आपके पास आ गया। तो ये एक ऑप्शन हम ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो वहां पर आपके पास में 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, अगर वहां एम एक्स प्लस एन वाई अगर कर सकते हैं तो वह चेक कर लो। इसमें से मैंने सपोज y कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस का 6xy, ये आपके पास में y dx बन गया, प्लस x कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 प्लस का 8xy आ गया, इनटू का x, ये dy। ये दिस इज द फोर्थ मेथड। ये फोर्थ मेथड किस फॉर्म में, f1 xy into y dx प्लस f2 xy into x dy is equal to 0, then integrating factor equal to 1 upon mx plus ny। it is mx plus ny or it is mx minus ny, क्या है आपके पास में, माइनस आएगा। माइनस आएगा, कंफर्म हो तुम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये माइनस आ गया, वेरी गुड। सो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो 1 अपॉन ये आ गया, एम जो आपके पास है ये एम है, इसको एक्स से इंटू कर दो आप, एक्स से इंटू कर दिया तो 2xy आ गया आपके पास में, इट इज 2xy। ठीक है, नाउ प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसको कर दो 3xy, 3xy माइनस 8 x square y square minus 8x square y square, we get 1 upon 2 और माइनस 3, तो माइनस का xy ये आ गया और माइनस का 2x square y square आ गया। इस दोनों में से कॉमन ले लो, मैंने माइनस का xy कॉमन ले लिया, 1 माइनस का 2xy आ गया आपके पास में, 1 प्लस का। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं क्या करूंगा, मैं ये इंटीग्रेटिंग दो तरह के आपके पास आ गया है, जबकि यहां पर आना चाहिए था ओनली सिंगल टर्म आपके पास आना चाहिए था, सिंगल टर्म नहीं आ रहा, फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है। तो ये यहां पर फिर ध्यान देने लायक है, इफ यू आर इफ यू गेट द फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इन द फॉर द आईएफ, इसका मतलब उस मेथड को आप ड्रॉप कर दो, आप एनी आईएफ will never be in a factor, फैक्टर के फॉर्म में कोई भी आपका आईएफ नहीं निकले, कैसा भी आप देख लो आप, आपके पास है, मैंने अभी तक जो समझाया आपको ये है, जो या तो एक्स एलोन बनेगा या तो वाई एलोन बनेगा, या अपने पास में दो का टर्म्स होगा, टर्म का मतलब प्रोडक्ट आपके पास में, लेकिन इस तरीके से आपके पास में बाइनोमियल टर्म नहीं होगा आपके पास में। और अगर है भी तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा और उसके बाद मैं फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता आपके पास में। सो यहाँ पर फिर हमारे पास में काम का है नहीं, अननेसेसरी आपको एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं, इसका अंदर इसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने इसे ड्रॉप किया, मैंने कहा अगर इफ यू डोंट नो एनी मेथड, बट एक ऐसा मेथड है, इफ यू अप्लाई इन एवरी मेथड देन यू विल गेट द सॉल्यूशन।
व्हाट इज दैट मेथड? तो वो आपको ये अज्यूम करके चलना होगा, लेट द फंक्शन इज इन एग्जैक्ट, लेट द फंक्शन या और लेट द इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट, हम मान के चलते हैं ये एग्जैक्ट में है, देन आई एफ इज इक्वल टू वो x की पावर h और y की पावर k आपके पास में, ये हमें मान के चलना है। हमने पहले भी कहा ये एग्जैक्ट नहीं है, ओके अंडरस्टूड। नाउ आई हैव यूज्ड फोर मेथड, वो चारों मेथड से हमारा कुछ निकला नहीं है, देन आई हैव यूज्ड द लास्ट वन। लास्ट वन आपके पास में ये है, आई हैव सपोज that this is in exact, and if the equation is in exact, then in that case integrating factor will be x h y k. It is the power of x and y. इस x h और y k को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x की पावर h, y की पावर k इंटू 2y प्लस का 6xy स्क्वायर इंटू dx प्लस अगेन x h y k 3x plus 8x square y into dy is equal to 0. Is equal to 0. So now multiply it. X h y raised to k plus 1 plus 2x h plus 1 y k plus 2. This is dx plus x h plus 1 y k plus 8x h plus 2 y k plus 1 into dy is equal to 0. Now take the m part. M is equal to x की power h, y की power k plus 1 plus 2x की power h plus 1, y की power k plus 2. M differentiate with respect to the y. Y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो k plus 1, x की power h, y की power k plus अगेन y की रिस्पेक्ट में k plus 2, ये आ जाएगा 2x की पावर h plus 1, y की पावर k plus 1. y k plus 2 में से एक कम हो जाएगा तो वह k plus 1 आ गया। अब मैं यहां पर इस पार्ट को रब करके देख रहा हूं, ये मैंने कर दिया। अब मैं ऊपर आ रहा हूं, अब देखिए मैंने n को ले लिया, n को मैंने x से कर दिया, ये आपके पास में आ गया। n आपके पास में क्या है, ये पहले लिख लो आप, तो x की पावर पहले लिख ही लो आप, n इज इक्वल टू x की पावर h प्लस 1, y की पावर k, y की पावर k प्लस 8x h प्लस 2 and k plus y की पावर k plus 1. Differentiate n with respect to x. This will be h plus 1, x की पावर h, y की पावर k plus h plus 2, 8x h plus 1 and y की पावर k plus 1. We have taken the equation is an exact. If it is an exact, then del m upon del y is equal to del n upon del x. Then you have to compare the coefficient of x की पावर h, y की पावर k and x की पावर h plus 1, y की पावर k plus 1. You can see in both the equation, in the term of m and in term of kya rहा, if m is given to, we have differentiate the m with respect to the y, we have taken the n and differentiate with respect to x. In this we can see that we have the two terms, x raised to power h, y raised to power k, and x raised to power h plus 1 and y raised to power k plus 1. So we have to compare that power with from both the equation. Then what we will get? अब हमें क्या मिलेगा वो हमें लेकर चलना है, ये यहां तक। अब देखिए x की पावर h, y की पावर k, सबसे पहले मैंने x की पावर h, y की पावर पे k इसको लिया, ये बन गया आपके पास में k plus 1 is equal to h plus 1, k plus 1 is equal to h plus 1. इसका मतलब हो गया h minus k is equal to 0. दूसरा h plus 1 x की पावर
h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, ये क्या आपके पास आ गया? इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू का k प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू का h प्लस 2। 2 से ये 4 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास में k प्लस 2 इज इक्वल टू 4h प्लस का 8 आपके पास में। अब जो भी आपके पास में टर्म्स है h इज इक्वल टू k आपके पास में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4h, इधर आ गया आपके पास में, तो h माइनस का 4h ये 3h आ जाएगा, और ये आपके पास में 6 आ गया। सो h इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, h इज इक्वल टू माइनस 2 आपके पास में। ठीक है, इफ h इज इक्वल टू माइनस 2 देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालोगे आप वैल्यू, आप उसको, लेकिन इसमें माइनस प्लस का कोई दिक्कत हो रहा है, चेक करो, you have to check it। h is equal to k, इसको चेक करना होगा। h माइनस 2, थ्री एच प्लस 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2k माइनस का 3h इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा k माइनस का 4h इज इक्वल टू 6। ये देन यू कैन सॉल्व इट, तो सॉल्व करने के लिए 2 से हम इंटू कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 2k माइनस का 6h इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस माइनस, h इज इक्वल टू 1 आपके पास में, जब h इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2 आ गया पास में। अब इसको थोड़ा चेक कर ले अपने पास में क्या क्या बन रहा है। 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3h प्लस 1, और इधर से आ जाएगा 6k, ये था आपके पास में 2, ये रहा m में, m क्या था आपके पास 8h प्लस 1, 8h प्लस 1,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, मैं बोल भी नहीं रहा कुछ भी। ना लोग, देयर वाज सम करेक्शन। वो करेक्शन एक ये था, मैंने यहाँ 2 लिया था, 2 नहीं था, वो 6 इंटू के प्लस 2 था आपके पास में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 6x² स्क्वायर था, तो 6 लिखना भूल गया था मैं। तो 6 आपके पास, इसको सॉल्व किया, 2k माइनस का 3h, it is 2k minus 3 is equal to 1 and 6k minus 8h is equal to 4. We have to solve this one. You will get x is equal to x k now, h is equal to 1 and k is equal to 2. You will get this one. If you have find this one, x is equal to h is equal to 1 and k is equal to 2, then integrating factor will be क्या था, x की पावर h y की पावर k, तो ये बन गया x h की पावर x y की पावर 2। देखो एक फैक्ट नंबर टर्म्स बन गया, इसको कहते हैं मोनोमियल। इफ यू विल गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन अ सिंगल टर्म, इसका मतलब वो सही है, कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपके पास है, वह बाइनोमियल में या ट्राइनोमियल में नहीं मिलेगा आपके पास में। ठीक है, अब इसे लेकर हम इंटीग्रेट, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर? द रोल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ओनली टू मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन। वो आपके पास में क्या है, वो देखिए ऊपर, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 6xy² इंटू का dx प्लस again it is a x y square into 3x plus 8x square y into dy equal to 0. Now it is confirmed that this equation will be in exact। अब यहां से m को ले लो, तो del upon del y will be equal to del upon del x is in exact। ये कंफर्म होगा। अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक इन द रफ साइड, जो यहाँ पर m को लेकर y के रिस्पेक्ट में, n को लेकर x के रिस्पेक्ट में, इफ दे आर डिफरेंशिएट आर इक्वल देन इट इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये एग्जैक्ट हो गया, तो अब इसके बाद करना क्या है, नाउ ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट इट। अब इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। उस इंटीग्रेट करने के लिए ये पार्ट आपके पास में, ये हो गया m का dx, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया x 2y क्यूब x 2y क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर y की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx इंटीग्रेशन, दिस इज x स्क्वायर y क्यूब 2 से कैंसिल हो गया प्लस 3x क्यूब, 3 का मतलब ये 2 आ गया, x क्यूब y की पावर 4 प्लस c1। नेक्स्ट and removal of the x into dy integration n part, you can see here it is a x, again here it is a x, so you can write c2। so therefore m dx plus n dy equal to x square y cube plus 2x cube y की पावर 4 plus c, this is your answer। the exact differential equation of the given equation was this one, this is your answer। तो ऐसे ही आपके पास जो है, वो जो भी मेथड है उस लेकर चलोगे आप, तो ऑटोमेटिक आपके पास में उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। शुड आई रब दिस वन? मैं रब कर दूं इसे? हेलो सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दो सर। एक मिनट, ठीक है, एम dx और एन dy, एम dx को इंटीग्रेट किया एंड एन रिमूवल ऑफ द x इनटू dy, इसको किया, दोनों कंबाइन करके मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन और मैं करता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम।
सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी। हाँ किसमें? मैं बोल देता हूँ सर उसे। एक मिनट एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं फिर बोलता हूँ। हाँ अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम हाँ। ये है कि साइन 2x साइन 2x dy बाई डी एक्स dy by dx इज इक्वल टू y प्लस 10x। y plus x। प्लीज सॉल्व करना आपको, यही ना? यस सर। तो इसको एक काम करो, सबसे पहला काम साइन 2x को एक बार रखो यहीं पर, dy अपॉन dx को रखो। जब ये y आ गया तो इस y को अपने पास ले आओ, ये y आ गया, ये 10x आ गया। अब साइन 2x मुझे नहीं चाहिए तो साइन 2x को रवाना कर दो, तो dy अपॉन का dx आ गया, माइनस 1 अपॉन का साइन 2x आ गया, इनटू का y इक्वल टू ये 10x हो गया और ये साइन 2x हो गया। अब फिर ये dy अपॉन का dx 1 माइनस कॉस 2x, ये हो जाएगा कॉसेक 2x इनटू का y इक्वल टू 10 साइन अपॉन कॉस होता है और साइन 2x क्या होता है? साइन 2x आपके पास 2 साइन x cos x होता है, ये 2 साइन x हो गया cos x हो गया, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया। अब cos स्क्वायर x जो है ना वह sec स्क्वायर में चला जाएगा, उसके बाद में sec स्क्वायर का मतलब है उसको आप ले जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर, चाहे इसका इंटीग्रेट cosec 2x का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। माइनस, सर ठीक है ना, माइनस cosec 2x है, उसका जो भी आप इंटीग्रेशन आता है वह इंटीग्रेशन y इंटू दैट आई एफ इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। वो आया समझ में? सर यहाँ तक तो हो गया, एंड के स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है सर। कुछ भी नहीं, तो आपको cosec का को इंटीग्रेशन आना चाहिए। इफ यू नो द नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec, तो y इंटू द, ये माइनस के साथ में है, cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और कुछ होता है क्या दूसरा? माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और एक होता है लॉग 10x/2। चलो ठीक है, अगर तुमने यही बातचीत कही है तो इसका मतलब ये हो गया, जो अगर मैं e की पावर में इंटीग्रेशन है तो लॉग आ गया, e से लॉग तो हो गया कैंसिल, तो सिर्फ वही बच गया आपके पास में। अब उसको अपने पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटू कर दो आप, और इफ इन द राइट हैंड साइड इफ द इंटीग्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो रहा है तो उसको छोड़ दो आप, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सॉल्व जरूर होगा, ये कहीं ना कहीं आपको इसको प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा आपको। ये सब ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है जो आपको यूज करना होगा उसमें। सर अगर उसमें एंड है के और स्टेप में हाँ, इफ द इन द एंड स्टेप जो है ना, अगर आपको लग रहा है जो यार इंटीग्रेशन बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट द मेथड जो है ना, जो आपने मेथड अप्लाई किया हुआ है वो मेथड बिल्कुल सही है, तो लास्ट में छोड़ दो उसको आप। मैंने एक क्वेश्चन और ऐसे मैंने किया था, मैंने उस क्वेश्चन में उसका इंटीग्रेशन नहीं निकल पा रहा था, तो मैंने वो इंटीग्रेशन के साथ ही मैंने इसके कह दिया दिस इज योर आंसर, वही मेरा आंसर निकल भी गया था। तो जबरदस्ती हम अगर उसको आंसर निकालने की कोशिश करें और वो है वो निकल भी नहीं पा रहा है, तो पूरा क्वेश्चन सही होकर भी हम गलत कर दें, तो ऐसी बेवकूफी हरकतें नहीं करना चाहिए अपने को। पहले चेक कर लो, देखो इंटीग्रेशन के बहुत सारे रास्ते हैं, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फंक्शन आपके पास में है जो उसको प्लस माइनस ऊपर नीचे उल्टा कर दो सीधा कर दो, कैसे भी करके देख लो, अगर कहीं ना कहीं अगर सेट बैठ रहा है तब तो उसको बैठा दो आप, अगर नहीं अननेसेसरी कुश्ती लड़ने से आपके पास में वहां पर उसको नहीं मैं तो निकाल लूंगा आंसर इसका, भले निकले चाहे नहीं निकले, वो काम मत करना। आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ उसको छोड़ दो, वहीं पर कह दो ये आंसर आपके पास है। ठीक है? ठीक है सर। ना लो, एक्स वाई क्यूब प्लस का वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
ये भी क्लियर हो गया जो ये एम डी एक्स और एन डी वाई है। तो सबसे पहला पार्ट ये है, इसके एम ले लो आप। एम हो गया एक्स वाई क्यूब प्लस का वाई, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई का, ये डेल एन अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा 3। कौन आवाज कर रहा है ये? हाँ बेटा बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? आप कुछ कहना चाह रहे हो? हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है, बार बार जो आवाज क्यों आ रही है? कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो तो बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मन में चुटकुला ही आ रहा है तो चुटकुला ही सुना दो, क्या दिक्कत है? सुन लेंगे, बहुत लोग बैठे घर बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं लोग। कुछ मन में आ रहा है तो बोल दो, क्या दिक्कत है इसमें? होता है भाई, 1 से 2 का लेक्चर जो है उसमें आदमी को परेशान तो होना पड़ता है, क्या करे, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अपने पास में। तो अगर कोई मन में कुछ ऐसी चीज है जो सुनाने लायक हो, सुनाओ, हम भी, मैं भी सुन लूंगा। बाकी सब बेचारे लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी सुन लेंगे। वो भी कुछ हंसी मजाक वाली बात भी तो वो भी हंसी मजाक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, इसमें क्या है? और नहीं तो थोड़ा सा ध्यान से, माइंड किसी का डिस्टर्ब मत करो, खासकर मेरा। नाउ लुक, m इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, ये आपके पास आ गया 3 x y² प्लस 1। यहीं पर मैंने n ले लिया, n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2x² y² प्लस 2x प्लस 2y की पावर 4। इसको x के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये आ गया मेरे पास में 4xy² प्लस 2 प्लस का 0। इससे ये क्लियर हो गया, डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। जब एग्जैक्ट नहीं है, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। अब फर्स्ट मेथड, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला मेथड कहता है होमोजीनियस, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, नहीं है छोड़ दो, आगे बढ़ो सीधे। दूसरा मेथड आपके पास में क्या है? उसमें सेकंड मेथड जो है, इफ 1 अपॉन m इंटू डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल y इज अ फंक्शन ऑफ x alone, then if is equal to e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अगर आपके पास में f एलोन में आ रहा है तो उसको एलोन में कर दो, अगर f एलोन में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आगे बढ़ कर देखो आप, उसमें जो क्या हम कर सकते हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो आपके साथ में क्या लिया, मैंने एक 1 अपॉन m डेल एन अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस में लिया मैंने, और उसी को मैंने पार्ट को आगे सॉल्व करके देखा मैंने आगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको दोनों को माइनस करके देखो क्या कुछ बन रहा है क्या आपके पास में। दोनों को आपस में माइनस करके हम डिवाइड करके देखो क्या कुछ हो रहा है क्या। दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको चेक करके देखो क्या ये आपस में माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर 1 ये अपॉन वाई। एक मिनट, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम m से कर रहे हैं या m y के डिफरेंशिएट, इसका मतलब इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन होना चाहिए। ठीक है, f y dy होगा ये। n से करते हैं तब x हो जाएगा, m से डिवाइड करते हैं तो y अपने पास में। जिसका मतलब आपने क्या निकाला, m से डिवाइड कर दिया आपने। यस सर। वेरी गुड, इसका मतलब ये हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो गया, ये जो निकला e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y इंटू का dy। तो 1 अपॉन y का मतलब e की पावर log y, log y का मतलब हो गया y। अब देखो कितना सिंपल हो गया, आपको करना क्या है, सिर्फ इस y से सबको इंटू करना है, इंटू करने के बाद में
जैसे आई एफ से y इंटू का एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई की पावर 4 इंटू का डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इंटू कर दो, उसके बाद में एम डी एक्स, यहाँ पर कर दो आप एम डी एक्स, उसके बाद में एन रिमूवल ऑफ द एक्स इंटू का डी वाई, इसका इंटीग्रेशन, ये आंसर, इसका ये आंसर, दोनों कंबाइन करके फिर देखोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे। नोट कर लें एक बार। हाँ ठीक है, इसको लिख लो, कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ लोगों से, ये एक्सरसाइज खत्म है। अब थोड़ा देर एक दो और क्वेश्चन लूंगा जिसमें मेथड आप लोगों से पूछूंगा, जिसमें से क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। चलो मैं आगे। रुको। हाँ ठीक है, कर लो। सर इस क्वेश्चन में वाई अलोन आया। हेलो, हेलो, हाँ बेटा एक मिनट। हाँ अब चलो मैं आगे। सर इसमें वाई अलोन आया। हाँ वाई एलोन आएगा बेटा, वाई एलोन। इसलिए तो मैंने कहा वहां पर चेंज किया मैंने, जो लिखा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। जो m से अगर डिवाइड करते हैं इसका मतलब वो y एलोन बनता है, और n से अगर मैं डिवाइड करता, n से का मतलब वही 1/n अगर करता तो x बनता, 1/m किया हुआ तो इसलिए y बना, तो y एलोन हो गया वो। चलो मैं आगे। सर यस इसको आई एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना? IF नहीं नहीं, हाँ दोनों बातें हैं बेटा। अगर IF से मल्टीप्लाई कर दिया तब डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो वो आप एग्जैक्ट को चेक करने के लिए कोशिश करोगे आप। अगर आप ये कहते हो जो मुझे चेक नहीं करना, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि अब ये हो गया एग्जैक्ट, बट स्टिल इफ इट इज इन योर माइंड दैट नहीं हमें तो चेक करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ क्या एग्जैक्ट में है कि नहीं है, तब आप डिफरेंशिएट करो आप m को y से और n को x से। नहीं करना चाहते हो छोड़ दो, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना होगा, जो जैसे ही हमने if से इंटू कर दिया इसका मतलब ये इटसेल्फ, ये फंक्शन जो है वो मेरा एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि if का रोल ही वही है। if मल्टीप्लाई जब किया जाता है इसका मतलब वो ऑटोमेटिक वो फंक्शन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया वो, इसलिए हम if निकाल कर मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो हम करते ही नहीं काम। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अगर चाहते हो, इफ यू विश दैट यू वांट टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, then only you can find the differentiation, otherwise don't find it, simply write a sentence that this is in exact form। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब सीधे आप उसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट कैसे करोगे, एम डी एक्स और एन रिमूवल ऑफ द एक्स इंटू का डी वाई। चलिए अब मैं स्टेप बाय मैं एक एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं। टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू का dy इज इक्वल टू 0। अब मैं जिसका नाम बोलूंगा वही वो बताएगा। क्वेश्चन आपने ये देख लो क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले जो मेरे सामने जो आ रहे हैं वो यही है। बेताब आप बताइए। आप बताएं क्या ये एग्जैक्ट में है कि नहीं है। टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई इज इट इन एग्जैक्ट और नॉट। क्या ये एग्जैक्ट में है या नहीं है। नहीं, कोई जवाब नहीं। मुनेश, आर यू हियरिंग मी। यस सर, बता रहा हूँ सर। हाँ उसको बताओ। आप बताओ पहले क्या ये एग्जैक्ट में है कि नहीं है। देवेंद्र कुमार बंसल, आपने कर लिया। सर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है सर, ये रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है सर। ठीक है, वेरी गुड। सर नहीं इसका मतलब ये एग्जैक्ट, अब रुक जाओ जल्दबाजी में नहीं। एग्जैक्ट नहीं है, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है। बिल्कुल सही है। कार्तिक वर्मा, आर यू लिसनिंग मी। कार्तिक वर्मा, नहीं। संजय, यस सर। आप बताएं अगर ये रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है तो बाय विच मेथड वी कैन सॉल्व इट। हमारे पास में 5 रेड्यूसिबल टू मेथड बताया था, उनमें से कौन सा मेथड ये अप्लाई होगा ये। कैन यू टेल मी। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। होमोजेनियस। क्यों। या सर वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो होमोजेनियस है। क्योंकि वाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स वाई हो गया, यहाँ पावर 2 है, ये एक्स स्क्वायर और 2xy। तो होमोजे फर्स्ट वाले में आई एफ क्या होता है। व्हाट इज आई एफ। 1/mx प्लस ny। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब इसको सॉल्व आप अपने आप करोगे, अब मेरा काम नहीं है। अब मेरा काम है नेक्स्ट को लेकर चलना। एक्स क्यूब एक्स वाई की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 2y की पावर 3 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अमन पाठक, आप पहले चेक करके बताएं क्या ये एग्जैक्ट में है कि नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई 4 इंटू डी एक्स प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0। क्या ये एग्जैक्ट में नहीं है सर। नहीं है। वेरी गुड। अगर एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब इट इज रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो उनमें से कौन सा मेथड हम यस यूज सर। कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। Which method we can use? ईशान मंगल, यस सर। आप बताएं कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। घबराओ नहीं, अब तो घर बैठे हो, सामने सब कुछ बुक है, नोट्स है। जतिन, किचन वाला रैक में अंदर की तरफ रखा होगा। चाची को पड़ा करके बुला सकते हो। जतिन, नहीं। पवन कुमार मीना, प्रीति गुप्ता,
आप सुन रहे हैं मुझे? प्रीति सर गुप्ता, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड थर्ड क्या है? मेथड थर्ड सर। मेथड क्या है? थर्ड मेथड 1/m into del n upon del x minus del m upon del y। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उससे आंसर निकल जाएगा। यस सर निकल जाएगा, बाई वेरी अलोन है ना इसलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाई एलोन आएगा या एक्स एलोन आएगा? जब n से डिवाइड करोगे आप, मेरे ख्याल से आप इससे डिवाइड कर रहे हो या इससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो डिवाइड? एक्स एलोन आएगा या वाई एलोन आएगा? m से डिवाइड कर रहे हैं, y अलोन आएगा। तो m से या n से? m m। m से, मतलब पहला जो पार्ट इससे डिवाइड करेंगे। अच्छा, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम n से डिवाइड करेंगे तो y लोन कहाँ है? x लोन आ रहा हो तो y से यस तो सर। y कैंसिल हो, ये तो x एलोन आ रहा है, 2x आ रहा है ये तो। यस सर। इसका मतलब हमारा ये था 1/n से डिवाइड किया, m से नहीं, n से आपने किया। ये आ गया डेल m अपॉन का डेल y माइनस डेल m अपॉन का डेल x इज अ फंक्शन ऑफ x एलोन। देन if इज इक्वल टू e की पावर में fx dx, और fx dx आपका 2x बन गया। 2x का मतलब हो गया e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल कर लोगे तो इसका मतलब 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल m अपॉन डेल x, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन। इसका जो आंसर आएगा उसको if निकालकर तब मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके, I have given that 2y dx plus 3x dy प्लस 2xy इंटू 3y dx प्लस का 4x dy, ये मैंने पार्ट दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बता सकता है? पहले तो क्वेश्चन लिख लो आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा तो दिमाग लगेगा इसमें, कंफर्म है ये। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? राइट द क्वेश्चन। क्या है? 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy इंटू 3y dx प्लस 4x dy एंड दैट शुड इक्वल टू 0। सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया तो अब आगे चलते हैं। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो इसका मतलब मैं अब मयंक तिवारी क्या कर सकते हैं इसको? क्या ये एग्जैक्ट में है कि नहीं है, पहले ये बता दें। दिस इज एन एग्जैक्ट और नॉट? नहीं। अमन श्रीवास्तव, क्या बात है, धीरे लोग निकलते कैसे जा रहे हैं? प्रिया,
रुचि अग्रवाल, यस सर। क्या होगा? क्या ये एग्जैक्ट में है कि नहीं है? पहले तो ये बताया आप। नहीं सर, एग्जैक्ट में नहीं है। नहीं है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये मान लेते हैं। अगर एग्जैक्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अगर ये रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है तो 5 मेथड हमारे पास में है, उन पांचों मेथड में से कौन सा मेथड एग्जिस्ट कर रहा है ये? देवेंद्र कुमार, तुम मॉक प्रैक्टिस करते हो और तुम्हारा अक्सर मेरे पास में मैसेज आता है। जितने बार भी मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ, तुम एकमात्र ऐसे हो जो मुझे हमेशा एट ए टाइम सॉल्व करके मुझे बताते हो और क्वेश्चन भी पूछते रहते हो। शायद मैं करेक्ट हूं मैं अपनी जगह पर। देवेंद्र, सर आर तो यू? पहले तो सर डीएक्स कॉमन लेंगे सर इसमें। ठीक सर है, पहले तो उसका क्वेश्चन मतलब इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे पहले तो, जिससे कि एम और एन निकाल सकें। हाँ अब मेरे ख्याल से, हाँ तुम थोड़ी बहुत बात सही कह रहे हो। यहाँ पर अगर आपको देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने फिफ्थ मेथड बताया था, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। उसके अंदर मैंने लिया था एक्स वाई बाहर था, फिर मैंने कहा था वहां पर ए डी वाई प्लस एक्स डी मतलब डी एक्स। देखो तो फिफ्थ मेथड आपने अगर लिखा होगा, क्या यही है क्या फिफ्थ मेथड? एक्स रेज टू पावर ए, वाई रेज टू पावर बी हाँ और वही वही बिल्कुल वही, एग्जैक्टली वही वही। उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर एच, वाई की पावर के। अब जैसे आपको ये मालूम पड़, क्योंकि और कोई मेथड लगेगा नहीं, तो उस फॉर्म में जैसे ही आ गया, उसके बाद क्या करोगे, dx को एक तरफ ले लो, dy को एक तरफ ले लो, ताकि वो mdx और ndy बन जाएगा। फिर if से इसको इंटू कर दो, if क्या है, x की पावर h एंड y की पावर k। तब आप उसको सॉल्व कर लेना। पहले x की पावर h, y की पावर k से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y कह रहा हूं, h एंड k। देन यू कैन इवेल्युएट, उसका आंसर निकाल सकते हो। रुचि आया समझ में बेटा? अब यस रुचि, सर। अब आगे समझ। मैंने 5 इसलिए मैंने कहा था, पांचों मेथड को रट के रखो आप, और कॉपी आपके सामने है, तो चीजों को देखना चाहिए जो हाँ ये चीज ऐसा बताया हुआ है। देखो तो सेम जो मैंने क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया हुआ है, फिफ्थ में वैसे ही नहीं आ रहा सर वही क्वेश्चन है ना यस भाई? सर। वही क्वेश्चन है सर। बिल्कुल गुड। तो ये तरीके हैं, अगर जब तक अपन उसको याद नहीं कर पाएंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे आपको ये लग गया जो हाँ ये क्वेश्चन, अब तो क्लियर है सबके? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये चैप्टर तो हमारा यहाँ फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में से, ये हमने किया फर्स्ट ऑर्डर का काम। अब जो हम आगे चलेंगे कल से, जो हम पढ़ेंगे वो हायर ऑर्डर का, मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो भी है। फर्स्ट ऑर्डर वाला सारा काम हमने कर लिया है। इसमें 2 ही टॉपिक था। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शुड आई लीव हियर? यस सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।